Welcome to Study Mantra. Please like my video and subscribe my channel. So here we will discuss the close packing structure. So the three-dimension mode of packing can be easily understood by dividing the whole process in three dimension. Means packing in one dimension. So here first we will discuss packing in one dimension. So in one dimension close packing, there is just one way of arranging for sphere. Here the spheres are arranged in row touching one another. The result, each sphere is in contact with the two other spheres, and thus in one dimension the coordination number is 2. Clear? तो coordination number क्या है कि एक स्फेयर कितने स्फेयर से टच कर रहा है. Okay, so now we will discuss dimension in close packing in two dimension. Close packing structure in two dimension can be generated stacking row of one dimension close packed sphere one above other. This can be easily understand divided into square close packing and hexagonal close packing. कैसे? Let's see. Square close packing. Two dimension में हम कैसे कर सकते हैं? Let's see. In this type, second row of sphere is placed in contact with the first row in such a way that the sphere of second layer is placed exactly above the sphere of first row. Clear? First row के just above होगी. Each sphere is contact with first row and A type, and in this type of arrangement the coordination number is 4. You can see one atom is surrounded by the 4 atom. तो यहाँ पर coordination number क्या है? 4 है. and arrangement क्योंकि सारे sphere का same ही है तो this is AA type arrangement. Clear? This is square close packing. Okay, so square close packing कैसे होती है? AA type packing and coordination होता है इसमें 4. Okay, now move towards the next packing, that is hexagonal close packing. So hexagonal close packing क्या है? Let's see. In hexagonal close packing, the second layer may placed in first one in staggered manner that each sphere fit in the depression of first row. If the arrangement of sphere of first row is called A type, the one in the second row is different and it may be called B type. So when the third row is placed adjacent to the second layer in the staggered manner, its spheres are aligned with those of first layer. Hence this layer is also A type. It is same first row की तरह ही है तो ये भी आपकी A type की है. So this arrangement is known as AB type, and coordination you can see each sphere is touching with 6 spheres. So coordination number is 6. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्फेयर को कितने स्फेयर टच कर रहे हैं? 6. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6. और ये जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो उससे डिफरेंट है तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? दिस इज AB टाइप अरेंजमेंट. क्लियर? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है? AB टाइप. हेयर डिफरेंट आपको मैं दिखा रही हूँ. स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैकिंग. तो हेक्सागोनल में आपके लेस एम्प्टी स्पेस है जबकि स्क्वायर में आप यू कैन सी बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस पड़ा हुआ है. क्लियर? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है तो हेक्सागोनल की. मीन्स वो ज़्यादा पैक्ड है कंपैरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग. और ये जो एम्प्टी स्पेस होता है इसको हम कहते हैं वाइड्स. ठीक है, वाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल. जितनी बड़ी वाइड्स बनेंगी उतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करती जाएगी. क्लियर? सो वाइड्स क्या है? द स्पेस जो आपका अवेलेबल होता है आफ्टर द अरेंजिंग स्फेयर इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन. क्लियर? तो ये जो स्फेयर आपका एम्प्टी पड़ा हो दिस इज वाइड एंड आपके पैकिंग एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है. So let's discuss the 3-dimension close packing. 3-dimension close packing ये भी आपका 2 types का है. तो सबसे पहले the close packing from 2-dimension square close layer, while placing the second layer square close packed layer above the first layer
we follow the same rule. Clear? So in this structure, the second layer is placed over the first layer in such that the sphere of upper layer is exactly above those of first layer. Means just first layer के ऊपर है, in same manner. So similarly, we placed more layer one above the other. If the arrangement of sphere in the first layer is called A type, so this is AAA types arrangement, and you can see that in this, you can see that देखो 4 layer, एक जो एटम है वो आपका 4 एटम से सराउंडेड है, एंड एक एटम अप है और एक एटम डाउन है. यू कैन सी, तो हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. ठीक है, और ये अरेंजमेंट क्या होगा? दिस इज ए टाइप अरेंजमेंट. क्यों? बिकॉज सारी लेयर्स क्या हैं, ये आपकी सेम है. ओके, ए लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये सारी आपकी सेम है. एंड यू कैन सी कि इस स्फीयर में this arrangement has generated simple cubic lattice, and the unit cell is called primitive cubic unit cell. Clear? Okay, आपकी जो सिंगल सेल बनती है, आपको बताया था ना 8 एटम से. Now we will discuss hexagonal close packing. So 3-dimensional structure, close packed structure can be generated by placing layer one another. तो अब इसमें हम कैसे रखेंगे? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर ए टाइप लेयर थी और हमने इस तरह रखा कि जो सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर. ठीक है, सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट इसमें आपकी क्या होता है कि फर्स्ट लेयर हमने ली एंड सेकेंड लेयर इज जस्ट हमने कहाँ रखी? डिप्रेशन में रखी इन फर्स्ट लेयर. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 टाइप्स ऑफ वाइट इज जनरेटेड. 2 तरह की वाइट्स आपकी बनती हैं. आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर अब हम देखो रख रहे हैं कि जब स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज अबव द वाइड ऑफ फर्स्ट लेयर, अ टेट्राहेड्रल वाइट इज फॉर्म्ड. ठीक है, 2 तरह की वाइट्स बनती हैं. अब जैसे फर्स्ट लेयर हमने बना दी थी, अब उसके ऊपर हम रख रहे हैं, तो क्या होगा कि वाइट्स बनेंगी. किस तरह की वाइट्स बनेंगी? 2 टाइप्स की वाइट्स बनेंगी. यू कैन सी देयर इज़ 2 टाइप्स वाइट. तो फर्स्ट वाइट जो है वो आपकी कौन सी है? दिस इज कॉल्ड आपका टेट्राहेड्रल वाइट्स, एंड द सेकेंड इज दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स. क्लियर? अब तो हमने क्या पढ़ा कि इधर 2 टाइप्स की वाइट्स बनती हैं. फर्स्ट टेट्राहेड्रल वाइट्स एंड सेकेंड इज ऑक्टाहेड्रल वाइट्स. ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय T एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय O. सो अब टेट्राहेड्रल वाइट्स कैसे बनती हैं? इसको हम वाई द वाइट्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइट्स बिकॉज अ टेट्राहेड्रन इज फॉर्म्ड व्हेन सेंटर ऑफ दीज 4 स्फीयर आर ज्वाइंट एंड दे हैव बीन मार्क्ड एज T. ठीक है, वन सच वाइट हैज़ बीन शोन सेपरेटली हेयर, यू कैन सी. ओके, सो आपको पता लग गया कि टेट्राहेड्रल वाइट्स कैसे बनेंगी कि जब आपके 4 जो एटम होंगे वो आपके अरेंज होंगे एंड एक टेट्राहेड्रन बनेगा. सो टेट्राहेड्रल वाइट्स आपकी फॉर्म होंगी. क्लियर? ओके, नाउ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स. ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कैसे बनती है कि द ट्रायंगुलर वाइट्स होती हैं इन द सेकेंड लेयर आर जस्ट अबव द ट्रायंगुलर वाइट्स इन द फर्स्ट लेयर. तो ट्रायंगुलर shapes of these do not overlap, and one of them has apex of the triangular pointing towards and other downwards. So this white has been marked as octahedral whites, and octahedral whites आपकी इस तरह जनरेट होगी. नीचे ट्रायंगुलर है और ऊपर ट्रायंगुलर है. क्लियर? तो इनकी वजह से जो आपकी वाइट बनेगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइट. ठीक है, तो in case we need to calculate the number of tetrahedral and octahedral white in a crystal nature, just knowing the number of sphere will serve the purpose. ठीक है, तो इनका पर्पस सिर्फ यही होता है कि हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ स्फेयर कैलकुलेट करने होते हैं. सपोज नंबर ऑफ स्फेयर इन अ क्रिस्टल सिस्टम इज n, तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी कितनी होंगी? इट इज़ इक्वल टू n, एंड टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगी इट इज़ 2n. तो जितने नंबर ऑफ स्फेयर होंगे उतनी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनेंगी और उसकी डबल टेट्राहेड्रल वाइट्स बनेंगी. क्लियर? सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर. तो अब सेकेंड के ऊपर हम जब हम थर्ड रखेंगे तो फिर क्या होगा? लेट्स सी.
So when third layer is placed over the second, there are two possibilities. टू पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइट्स, मीन्स थर्ड लेयर हम ऐसे रखें कि टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर कर लें. सेकेंड, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, की थर्ड लेयर हम ऐसे रखें कि ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर हो जाए. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस टेट्राहेड्रल वाइट्स को कैसे कवर करेंगे. टेट्राहेड्रल वाइट्स ऑफ सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर. In this case, the sphere of the third layer are exactly aligned with those of the first layer, and thus the pattern of sphere is repeated in alternate layers. This pattern is often written as AB pattern. Clear? And this structure is called hexagonal close packing. Clear? आपको दिख गया ये स्ट्रक्चर कैसे होगा कि सारी टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर करना है तो थर्ड लेयर होगा वो उसी पैटर्न पे रखी जाएगी जिसमें आपकी फर्स्ट लेयर है. तो सारी टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर हो जाएंगी और इसको हम कहेंगे AB पैटर्न और ये कहलाएगी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्लियर? सो ईच स्फीयर इन दिस कॉन्टेक्ट विद द 12 अदर स्फीयर. हाँ देखो, आप देखो कि हर एक स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर को टच कर रहा है? 12 स्फीयर को. तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज 12. तो आपसे कोई पूछे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 12. अब नाउ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कैसे कवर करें. द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वाइट्स. When placed in this manner, the sphere of the third layer are not aligned with those of either the first or the second. ठीक है, तो जो आपकी थर्ड लेयर है it is totally different from the AB. तो this is called C layer और this arrangement is called ABC type arrangement. इससे पहले क्या था? थर्ड लेयर क्या थी? सेम थी ए की तरह, बट यहाँ पर जो है थर्ड लेयर वो आपकी ए की तरह नहीं है. तो दिस इज ABC टाइप अरेंजमेंट. क्लियर? आप देख भी सकते हो स्ट्रक्चर में कि तीनों लेयर से आपकी क्या है? डिफरेंट है. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP और फेस सेंटर्ड आपका स्ट्रक्चर. तो CCP और आपका FCC स्ट्रक्चर ये आपके बनाएंगे और इसके एग्जाम्पल कॉपर एंड सिल्वर हैं. क्लियर? सो बोथ टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट एंड 74% ये आपका कवर हैं इन दिस मैनर और इनमें कोऑर्डिनेशन आपका 12 होता है. ठीक है, आप यू कैन सी कि इसमें भी आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12 होगा. हर एक स्फीयर 12 स्फीयर को टच करेगा. दिस इज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. गुड बाय एंड